Hello and welcome to your English language class. Today in this class we'll be taking up the chapter The Sermon at Banaras from First Flight, and it has been written by Betty Renshaw. Now first of all, let us know what is a sermon. A sermon is a religious or moral talk usually given by a religious leader in order to liberate the people from their sinful nature and mold them towards the right path. And it is quite different from a lecture because lecture is a deliverance provided by a subject expert on any topic, scientific, social, political, etc., to make the audience understand some concept. And the lectures are generally delivered in classrooms, as you must be aware. So now talking about the sermon at Banaras, written by Betty Renshaw. The sermon at Banaras is mainly based on the theme of grief over death. Every one of us knows that death is inevitable and no medicine, no power in this mortal world can stop it. One who is born must come to end one day. It is natural for humans to be aggrieved by the death of loved ones. Through his sermon at Banaras, Buddha shows us the path. He says that the wise people do not grieve, as weeping does not bring peace to the mind. On the other hand, a person's pain becomes greater by grieving. His body also suffers. One who has learned to control his grief shall have peace of mind. So now let us read from the text. Use a dictionary or ask your teacher's help as you discuss the following questions in groups. First is, what is a sermon? Is it different from a lecture or a talk? Can this word also be used in a negative way or as a joke, as in my mother's sermon about getting my work done on time? So I've already told you what is a sermon, and yes, it is different from a lecture or a talk, right? And sometimes we do use it in a negative way. Okay, like here in this example, it is said that my mother's sermon about getting my work done on time. Okay, तो जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना कि मम्मा ने मुझे उपदेश दिया, ठीक है? तो एक्चुअली उपदेश जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन कभी कभी हम इसको नेगेटिव वे में भी यूज़ करते हैं. So find out the meanings of the words and phrases given in the box. Let me help you with this. Okay, so the first phrase is afflicted with, which means suffering from pain, distress or disability. Second is be composed. It means to be calm and free from agitation. Third is desolation. It means extreme sadness or feeling of hopelessness. Fourth is lamentation. It means expression of grief. Fifth is procure. Procure means to acquire or obtain. And the last one is be subject to, which means to be controlled or ruled by something. Okay, and have you heard of the Sermon on the Mount? Who delivered it? Who do you think delivered a sermon at Banaras? So basically, Sermon on the Mount has been delivered by Jesus Christ himself, and this sermon at Banaras was delivered by Gautam Buddha. Okay, so let us read now. Gautam Buddha, 563 BC to 483 BC, began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. You all must have heard about Gautam Buddha, okay, and actually he was a prince, and he was originally named Siddharth Gautam by his parents. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. Okay, like it was a custom that all the princes were sent to some gurukul, or they were sent away for schooling actually. Okay, and so finally, when he returned, Siddharth Gautam, when he returned home to marry a princess,
finally he got married and they had a son and lived for 10 years as befitted royalty. So जो सिद्धार्थ गौतम थे वो एक नॉर्मल जैसे एक प्रिंस जो हैं उनकी तरह ही जन्म लिया था और उनको गुरुकुल भेजा गया फॉर हिज स्कूलिंग, और वो वापस आए और उन्होंने एक राजकुमारी से शादी की. ओके, फाइनली उनका एक बेटा भी हुआ और 10 साल तक वो ऐसे ही जो एक जैसे एक राजकुमार की जो ज़िंदगी होती है, he lived that. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world, okay, अब 25 years की एज अटेन करने तक he was kept away from all the sufferings of the world. Okay, उनके फादर को कहीं ना कहीं ये पता था या उनकी एक लाइफ की एक प्रेडिक्शन किसी एस्ट्रोलॉजर ने कर दी थी कि अगर इन्होंने कभी भी लाइफ में कुछ भी गलत होते हुए देखा या कभी भी किसी को सफ़र करते हुए देखा या किसी को मरते हुए देख लिया तो उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट इन पे पड़ सकता है. सो हिज फादर tried his level best to keep him away from all the sufferings. Okay. So one day what happened, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession. अब एक बार वो शिकार करने गए तो वहाँ पे उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा. ओके, एक बीमार आदमी को देखा, फिर एक बूढ़े आदमी को देखा और एक फ्यूनरल प्रोसेशन. फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब जब कोई मरता है तो उसकी जो अंतिम यात्रा होती है. ओके, तो उन्होंने वो भी देखी. एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और उन्होंने एक जो भिक्षु होते हैं ना, जो आर्म्स जो होते हैं मतलब जो भिक्षा इकट्ठी करते हैं वो, ठीक है, आपने देखा होगा जितने भी ये साधु संत होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वो भिक्षा मांगते हैं. तो वैसे ही उन्होंने एक मॉन्क को देखा जो कि भिक्षा मांग रहे थे. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. Now all these sights of people being sick and then they getting old and then they dying, it just moved him so. Okay, it just changed his perception and he tried to seek enlightenment. Enlightenment means a state of high spiritual knowledge. So he went and he tried to gather spiritual knowledge from wherever he could. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. वो 7 सालों तक इधर उधर घूमते रहे टू अटेन स्पिरिचुअल नॉलेज. जहाँ कहीं पर भी उन्हें लगता था कि उन्हें थोड़ा बहुत भी जो एक स्पिरिचुअल नॉलेज कहीं से भी उनको लगता था मिल सकती है तो वो वहाँ चले जाते थे और ऐसे ही घूमते घूमते फिर वो एक पीपल ट्री के नीचे आके बैठ जाते हैं. वेयर ही वाउड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम. Now he finally made up his mind that he'll remain seated under this peepal tree until he attain enlightenment. Okay, enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree. और 7 दिनों तक वहीं बैठकर तपस्या करने के बाद फाइनली उन्हें जितना भी जो स्पिरिचुअल नॉलेज थी, जो विजडम थी, वो मिल जाती है और उसके बाद वो उस पीपल ट्री का नाम बोधि ट्री रख देते हैं. बोधि ट्री मीन्स ट्री ऑफ विजडम. ठीक है, तो वो एक ज्ञान का पेड़ बन जाता है. एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स. And he started teaching all the disciples whoever came to get enlightenment from Gautam Buddha. At that point he became known as the Buddha. Buddha means the awakened or the enlightened. Okay. The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras. और उन्होंने जो पहला अपना प्रवचन या उपदेश जो है वो बनारस सिटी में दिया था. मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गेंजेस. और वो बनारस जो है वो सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है जो कि गंगा किनारे बसे हुए हैं. दैट सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर.
वही सरमन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसको काफ़ी संभाल के रखना पड़ा, ऑब्वियसली इट्स it's a thing of past and it has been preserved, okay, and now it has been published in the form of this book, okay. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. Inscrutable means something which cannot be understood. Now, we all go through all these phases when we get sick, when we get old, and when we see death around us, but we don't go deep into all these things, okay. हर कोई इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता, जबकि हम सब ये चीज़ें सफ़र करते हैं, हम चीज़ें देखते हैं अपने आसपास होते हुए, बट वी हार्डली गो डीप इनटू इट, राइट। लेकिन गौतम बुद्धा ने इस बारे में काफ़ी सोचा और काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त किया, ओके। नाउ कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। अब कीसा गौतमी नाम की एक लेडी थी और उनका एक ही बेटा था और जो कि मर जाता है। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज़ डेड। अब वो सबके पास जाती है हेल्प मांगने अपने पड़ोसियों के पास कि कोई दवा दे दो और मेरे बेटे को बचा लो, बट द बॉय इज़ ऑलरेडी डेड एंड नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। सो एवरीबडी स्टार्ट सेइंग दैट शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि ये पागल हो चुकी है एंड शी इज़ टॉकिंग रबिश, ओके। एट लेंथ कीसा गोस्वामी met a man who replied to her request, I cannot give the medicine for thy child, but I know a physician who can. अब वो कहता है कि मैं तुम्हें दवाई तो नहीं दे सकता आपके बच्चे के लिए, लेकिन मैं एक फिजिशियन, एक डॉक्टर को जानता हूँ जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर, हु इज़ इट? एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्यामुनि द बुद्धा। वो वहीं उसको भेजते हैं बुद्धा के पास कि तुम वहाँ जाकर उनसे रिक्वेस्ट करो एंड he'll definitely save your child. Kisa Goswami repaired to the Buddha and cried. Okay, so she went to Buddha and she requested, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. The Buddha answered, I want a handful of mustard seed, and when the girl in her joy promised to procure it. अब जैसे ही बुद्धा ने उसे कहा कि जाके एक मुट्ठी सरसों के बीज, जो सरसों होती है ना, उसके बीज तुम लेकर आओ, तो अब वो जल्दी से खुश हो जाती है कि हाँ, इट्स अ वेरी इजी टास्क एंड आई कैन ऑब्टेन इट, ओके, राइट, आई कैन गेट इट फॉर यू। द बुद्धा एडेड, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। बट वो एक कंडीशन रख देते हैं इसके साथ कि जो मस्टर्ड सीड तुम लेकर आओ वो एक ऐसे घर से होनी चाहिए जहाँ पे कभी कोई डेथ ना हुई हो, ना वहाँ पे कोई बच्चा, किसी बच्चे की डेथ हुई हो, ना उसके हस्बैंड की, ना पेरेंट की, ना फ्रेंड की। पुअर कीसा गोतामी नाउ वेंट फ्रॉम house to house and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family, they answered her, alas, the living are few but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house but some beloved one had died in it. वो पूरे जो उसका विलेज होता है वहाँ पे वो घूमती है, हर घर में जाकर पूछती है कि आप मेरे को मस्टर्ड सीड दीजिए। अब लोग देते हैं मस्टर्ड सीड निकाल के, लेकिन जब वो उनसे पूछती है क्या आपकी फैमिली में किसी की भी डेथ हुई है, तो वो कहते हैं कि आप हमारे ज़ख्मों को मत कुरेदिए, और हमारे यहाँ तो काफ़ी डेथ हो चुकी हैं, बहुत सारे लोगों, मतलब मे बी एंसेस्टर्स से लेके अब तक काफ़ी डेथ हो चुकी हैं। तो वो कहते हैं ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ पे कभी भी किसी की डेथ ना हुई हो। सो कीसा गौतमी became weary and hopeless. She became weary means tired. She became tired and she became hopeless, and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last the darkness of the night reigned everywhere. अब जो लेडी थी कीसा गौतमी, वो थक जाती है और चुप करके बैठ जाती है, ठीक है, और वो देखती है कि जो पूरे शहर की या
हाँ, बनारस सिटी की जो है लाइट्स जलती हैं और फिर धीरे धीरे बुझने लग जाती हैं और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ होता है. एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन एंड देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन. और वो ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी के बारे में सोचती है कि या दिस इज़ द फेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, that we are born and then we live our life and finally we all die. And she thought to herself, how selfish am I in my grief? Death is common to all. Yet in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. A valley of desolation means an area which is filled with deep sorrow. अब वो यही बैठ के सोचती है कि मैं कितनी सेल्फिश हो गई हूँ अपने दुख में, और डेथ जो है वो तो सब के लिए कॉमन है, वो तो ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी किसी को मिलती है, वो तो सबके ही नसीब में है लिखी हुई. लेकिन ये जो मेरा डीप सॉरो है, जितना मुझे इतना ज़्यादा जो ये दुख है, उसकी वजह से वो जो है एक जो उसका जो पाथ है उस वैली का, वो इमॉर्टैलिटी की तरफ जाता है. लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्होंने अपनी सारी सेल्फिशनेस, अपने जितने भी सेल्फिश इंटरेस्ट हैं उनको गिव अप कर दिया है और उन्होंने भगवान के राह पे अपने आप को सरेंडर कर दिया है, जिन्होंने मोह माया मोक्ष सब कुछ त्याग दिया है. द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन. अब बुद्धा उसको समझाते हैं कि जो हम इंसानों की लाइफ है, हमें मॉर्टल क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम जो है वी ऑल हैव टू डाई, राइट. हम ऐसा नहीं है कि वी कैन गो ऑन फॉर एवर, राइट. सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एवरीबडी डाइज, सो वी ऑल आर मॉर्टल्स एंड वन हु रिमेन्स फॉर एवर इज नोन एज इमॉर्टल. सो द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, मॉर्टल्स मीन्स ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे मॉर्टल्स ह्यूमन बींग्स या लिविंग बींग्स को रेफर किया गया. सो द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, काफ़ी दुख भरी होती है, छोटी होती है, एंड इट इज़ कम्बाइंड विद पेन. यस, ऑब्वियसली हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ दुख हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, ठीक है. ऐसा तो कोई भी नहीं होता जिसकी लाइफ में कोई भी दुख ना हो. For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. और ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि जो पैदा हुआ है उसको मरने से बचाया जा सके. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings, as ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. So जो पैदा हुआ है वो उसकी मौत तो निश्चित है, जो इस दुनिया में आया है उसको फाइनली यहाँ से जाना भी है. As all earthen vessels, मतलब जितने भी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मेड बाय द पॉटर, जिनको एक पॉटर बनाता है, एंड इन बीइंग ब्रोकन, वो फाइनली कहीं ना कहीं टूट जाते हैं. जैसे जो मटका होता है या घड़ा होता है, उसको बनाने वाला जो होता है पॉटर, ठीक है. जैसे जो भगवान है उन्होंने हमें बनाया है, यहाँ पे पॉटर कौन है, गॉड, ओके. और हम लोग क्या हैं, वी ऑल आर अर्दन वेसल्स एंड वी फाइनली वील ऑल बी ब्रोकन समडे. सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death. All are subject to death. So जो भी इस दुनिया में आया है, चाहे वो मूर्ख है, चाहे वो समझदार है, चाहे वो यंग है, चाहे वो एडल्ट है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फेज में है अपनी लाइफ के, हम सब जो हैं वी ऑल आर कंडीशन्ड टू डेथ, ठीक है. सो at some point of time we all have to die. Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Okay, और जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनको वापस लाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत, इट्स इम्पॉसिबल, राइट. सो इवन अ फादर कैनॉट सेव हिज सन, और जो किन्समैन होते हैं वो अपने रिलेशंस, कोई भी रिलेटिव को हम बचा नहीं सकते अपने. मार्क, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर. अब जितना भी जो रिश्तेदार हैं वो दुख मना लें, रो लें, पछता लें, लेकिन
लाइफ जो है, जो मॉर्टल्स हैं वो एक के बाद एक चले ही जाते हैं। जैसे कि जो ऑक्स है वो, उसको फाइनली स्लॉटर हाउस तक लेके जाया जाता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है या बीमार हो जाता है तो फाइनली उसको स्लॉटर हाउस में लेकर बलि दे दी जाती है उसकी। सो द वर्ल्ड इज़ एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके। ओके, सो world is affected by suffering, disease or pain. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. और जो समझदार हैं वो इस चीज़ का दुख नहीं मनाते, क्योंकि उन्हें ये चीज़ अच्छे से पता है कि जो इस दुनिया में आया है उसे फाइनली जाना है। एंड वीपिंग won't help. Okay, crying and suffering won't help. Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. और कितना भी हम रो लें, कितना पछता लें, कितना दुख मना लें, हमें उससे कभी भी अपनी जो एक सुकून है, शांति है दिमाग की, वो कभी नहीं मिलने वाली। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। और जितना ज़्यादा आप ग्रीव करोगे, जो चले गए हैं उनके लिए दुख मनाओगे, उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके दिमाग में असर पड़ने लग जाएगा, आपकी बॉडी सफ़र करने लग जाएगी। ठीक है, आप खाना पीना त्याग दोगे और धीरे धीरे आप क्या होते चले जाओगे, आप ही बीमार पड़ जाओगे। He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. तो आप कितना भी दुख मना लो, पछता लो, लेकिन उससे आप जाने वाले को वापस नहीं ला सकते, उसे बचा नहीं सकते। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation. और जो ये आपकी जो डीप सॉरो है, सफरिंग है, इसका जो एरो आपके दिल में जो लगा हुआ है, ये तीर, ठीक है, उसको आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो धीरे धीरे उसका जहर जो है आपकी पूरी बॉडी पर फैल जाएगा और धीरे धीरे शायद आप भी उसके साथ ही, यू विल ऑल्सो डाई and complaint and grief. Okay, so this arrow of lamentation, complaint and grief, you have to draw that out of your body, out of your system, if you want to live peacefully. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. So ये एरो हमें खुद ही निकालना पड़ेगा और फिर से हमें अपने जो हमारी शांति है, हमारा जो एक सुकून है, उसको वापस हमें खुद ही ढूंढना होगा। ठीक है, और जितने भी ये दुख दर्द है और पछतावा है, इससे हमें खुद ही अपने आप को फ्री करना होगा। ठीक है, और तभी हम एक ब्लेस्ड, एक पीसफुल लाइफ बिता पाएंगे। अदरवाइज एवरी डे वील बी सफरिंग फॉर नो रीज़न एट ऑल, because those who have left us will not be coming back to us, right? And one day we all will be gone. So ऐसा तो नहीं है कि जो चले गए हैं उनको अगर हम वापस ले भी आएँ तो हमारी क्या गारंटी है कि हम हमेशा के लिए रहने वाले हैं। सो कभी ना कभी हमें भी जाना है, तो उनको, जो चले गए हैं उनको वापस बुला के भी हम क्या कर लेंगे, है ना, जब हमारे ही खुद की कोई गारंटी नहीं है कि फॉर हाउ मेनी डेज विल बी अलाइव। सो व्हाट्स द पॉइंट? सो इट्स बेटर इफ़ वी जस्ट सीक peace of mind and we let go of all the grief and all the sufferings and pray for all those who have left us to be peaceful wherever they are. They all must rest in peace, right? So this is a beautiful sermon delivered by Gautam Buddha. I hope you've understood it. So just write a short summary of this chapter and do all the question answers. Okay, and submit your homework by 3 o'clock tomorrow. Thank you for watching this video.